ایک طرف دین ہے، دوسری طرف مدینہ منورہ کا قیام ہے۔ دین کے تحفظ کے لیے مدینے کے قیام کو چھوڑنا پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں مولا حسین رات کی آخری پہر میں قدسیان فلک جو ہے درود و سلام کی نظریں لے کر، درود و سلام کے گجرے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہوں گے۔ ایسے میں دعائیں بابا اجابت الہی سے ٹکرا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، مولا حسین کا گھر کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، اور اس کے بعد حسین گھر سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جو ہے سیدھا جنت البقیع کی طرف رخ کرتے ہیں۔ محض چشم تصور سے جب میں ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں کہ مولا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے جب اپنی امی کے مزار پہ تشریف لے گئے ہوں گے، اس وقت ماں کے مزار پہ جانے کے بعد حسین پاک نے جب اپنی امی کو آخری سلام پیش کیا ہوگا، اس وقت میرے مولا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ تصورات کی دنیا کے اندر جب ہم مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں پہنچتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے شاید یہ منظر چشم فلک نے دیکھا، پشت زمین نے دیکھا، اور اس دن مدینہ منورہ کے افق پر چمکنے والے چاند نے دیکھا۔ حسین ماں کے مزار پر آئے اور آنے کے بعد امی کی قبر سے لپٹ گئے ہوں گے، اور لپٹنے کے بعد شاید ان جملوں میں عرضی پیش کی ہوگی، امی جان اپنے حسین کا آخری سلام لو، ماں یہ وہی حسین ہے جس کو تم لوریاں قرآن کی آیتوں سے دیتی تھی، امی یہ وہی حسین ہے جس کو تو نے اپنا دودھ پلایا تھا، امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جو ہے جبریل زمین پہ جھولا جھلانے کے لیے آتے تھے، امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت کے جوڑے منگوائے جاتے تھے، امی یہ وہی حسین ہے کہ جو ضد پر اڑ جاتا تھا اس کی ساری ضد پوری کر دی جاتی تھی۔ آج ماں تیرا حسین تیری چوکھٹ پر آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام عالی مقام نے یہ بھی کہا ہوگا، امی تیرا حسین بزدل نہیں ہے، امی تیرا حسین جس نے تیرا دودھ پیا ہے وہ بزدل نہیں ہے، چھوٹے دل کا نہیں ہے، کم ہمت نہیں ہے، کم حوصلہ نہیں ہے، لیکن امی بات اتنی ہے کہ جس دن کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا، جس دن کے لیے میری پرورش کی گئی تھی، امی آج وہی دن آیا ہے، اور تیرا حسین تیرے بابا کا دین بچانے کے لیے اب سوئے کربل روانہ ہو رہا ہے۔ ماں تیری میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی، حوض کوثر پر ہوگی۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا اپنی ماں کو سلام پیش کر رہا ہے، گویا مولا حسین نے یہ کہا ہوگا، ماں آج آنے کا مقصد صرف یہ ہے، تو وہ ماں ہے اے ماں کہ تیرے دروازے سے کبھی کوئی سائل واپس نہ گیا، تیرے چوکھٹ سے کوئی سائل واپس نہ گیا، تو نے بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا، تو نے دوپٹہ فروخت کر کے سائل کی مراد پوری کی۔ آج تیرا حسین تیری چوکھٹ پر سائل بن کر کے آیا ہے، امی امی آج بس ایک چیز مانگنے آیا ہوں، تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے لاکھوں سائل آتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن آج حسین تیری چوکھٹ پر صرف سائل بن کر کے آج اس لیے آیا ہے کہ صبر و رضا کی بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں امی، جب معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر چلے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے، جب علی اکبر کا 18 سال کے بیٹے کا لاشا تیرا حسین اٹھائے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے۔ ہاں ہاں امی، جب قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے، جب 3 دن کی بھوک و پیاس حسین کو بے چین اور بے قرار کرے اس وقت حسین ضمیر کا سودا نہ کرے۔ امی اٹھو، دعا کرو اور میرے سر پہ ہاتھ رکھو، اپنا پلو میرے سر پہ رکھ کر دعا کرو۔ غالباً میرے حسین نے، میرے پاک امام نے اپنی ماں کی بارگاہ میں فریاد کی ہوگی، اور ماں نے پھر نہ جانے کی شان سے، وہ ماں جس کی چوکھٹ سے غیر خالی نہیں جاتے، اس نے بیٹے کو کیسے خالی لوٹایا ہوگا۔ میں تصور کی چشم سے دیکھتا ہوں تو مجھے جنت البقیع میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب حسین نے آہو فغاں کی ہوگی تو زمین مدینہ منورہ میں بقیع میں آرام کرنے والی ہر قبر پر لرزہ طاری ہو گیا ہوگا، روحیں دہل گئی ہوگی، اللہ اکبر، آسمان کو چکر آنے لگے ہوں گے، زمین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے ہوں گے، اور شاید قبر فاطمہ سے یوں آواز آئی ہوگی، حسین صبر سے کام لینا، حسین اور امتحان میں کامیاب ہونا۔ میرے بیٹے، میں نے تجھے دودھ اسی لیے پلایا تھا کہ جب نانا کا دین اجڑنے لگے تو تو اپنا گھر اجاڑ کر نانا کے دین کو بچا لینا۔ جا حسین، اٹھ، انتظار نہ کر، جلدی جا میرے بیٹے، اور دیکھ کربلا میں امتحان دینا، صبر سے کام لینا، ضمیر کا سودا نہ کرنا۔ اور سن میرے بیٹے، تو تنہا کربلا میں نہیں رہے گا، میں بھی تیرا امتحان دیکھنے آؤں گی، تیرے بابا علی بھی امتحان دیکھنے آئیں گے، اور تیرے نانا
मोहम्मद अरबी भी तेरा इम्तिहान देखने आएंगे, बेटा इस्तिकामत का मुजाहरा करना, जमीर का सौदा न करना, अब देर न कर जल्दी जा, वक्त तमाम हुआ चाहता है। पता नहीं माँ ने किस तरीके से जो है अपने बेटे को तसल्ली दी होगी, और वो बेटा अपनी माँ के कब्र से लिपट लिपट कर रो रहा होगा। हुसैन माँ की कब्र से बमुश्किल अपना दामन हटाते हैं और भाई की कब्र से, हसन मुश्तबा की कब्र से लिपट जाते हैं। हसन पाक को क्या कहा, कितना कहा, कैसे कहा, अब मैं तो तस्वुरात की दुनिया में भी जो है नाकाम हुआ चाहता हूँ। और अल्लाह अल्लाह मैं वो तस्वीर कैसे बयान करूँ। एक भाई जब दूसरे भाई से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि बचपने में बात बंद हो गई तो कहा कि पहले आप बात शुरू करें ताकि मेरे भैया आप मुझसे पहले जन्नत में जाएं। क्या मिसाली मोहब्बत थी दोनों भाइयों की। लेकिन आज एक भाई की कब्र छोड़कर जा रहा था, मौला हसन पाक की कब्र को चूमा, वहां से निकले और नाना को आखिरी सलाम पेश करने के लिए हुसैन नाना के मज़ार पे तशरीफ ले गए। सितारों की गर्दिशें रुक गई, हवाओं का मामला थम गया होगा और मौला हुसैन नाना के मज़ार पर आए। वो नाना जिसके आस्ताने पर आवाज़ बुलंद करने से अमाल ज़ाय हो जाते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं तो शाम तक, और शाम को आते हैं तो सुबह तक। हुसैन आज रूए ज़मीन पर रसूलुल्लाह का सबसे प्यारा जो था उसी का नाम हुसैन था, सबसे करीबी रिश्तेदार जो था उसी का नाम हुसैन था। मौला हुसैन अल्लाह अल्लाह, कोई उम्मती नबी की चौखट पे जाता है तो उसकी हिचकियां बंधने लगती है। आज नबी का सबसे चहीता, सबसे प्यारा, सबसे महबूब, सबसे बड़ा महबूब, बल्कि इतना बड़ा महबूब जिसके लिए कहा था अल्लाह जो हुसैन को महबूब बनाए मैं उसको महबूब बनाता हूँ, हुसैन के मुहिब को अपना महबूब बनाता हूँ। आज वो सबसे बड़ा महबूब, सबसे करीबी रिश्तेदार रूए जमीन पर, नबी का इससे करीबी रिश्तेदार उस दिन रूए जमीन पर कोई नहीं था जो इमाम अली मकाम को रिश्ता हासिल था। हुसैन नाना के मज़ार पे लिपट गए। महज चश्मे तसव्वुर से हम देखते हैं तो यूं लगता है हुसैन ने अपने नाना से कहा होगा, वो अम्मा साइला फला तनहर का नगमा कुरान आपके लिए गुनगुनाता है, जिब्रील आपके दर का सवाली है, आपके दर का दरबान है, फरिश्ते आपकी चौखट से खैरात पाते हैं, अंबिया औलिया और सबको आपकी चौखट से मिलता है। नाना जान आज आपका हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। नाना आप चुप क्यों हैं? नाना आप बोलते क्यों नहीं? नाना आप खामोश क्यों हैं? क्यों आप मुझसे बोलते नहीं? आप मुझसे कलाम क्यों नहीं करते? मुझे लिए तो सजदे तवील करते थे, मैं आ जाता था खुतबा रोक कर मिंबर से नीचे उतरते थे। आज आप चुप क्यों हैं? आप बोलिए ना कुछ, आप खामोश क्यों हैं? आप बोलिए ना कुछ, अपने हुसैन को तसल्ली दीजिए, अपने हुसैन के सर पे तसल्ली का हाथ रखिए। गोया के हुसैन पाक, मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि अपने नाना से महवे गुफ्तगू है। ऐसे में शायद हुजूर ने अपने उस नवासे को कहा होगा, हुसैन जा, इसी दिन के लिए तुझे पाला था, इसी दिन के लिए तेरी परवरिश की थी, इसी दिन के लिए तुझे कंधों पे बिठाया था, इसी दिन के लिए खुतबा रोककर तेरे लिए मिंबर से नीचे आया था, इसी दिन के लिए तेरे लिए सजदे तवील किए थे। पता नहीं क्या क्या राज की बातें हुई, बोल भी नहीं सकता, जानते भी नहीं, जितना अपने बुजुर्गों से जाना वो बता भी नहीं सकते। हुसैन आखिरी सलाम अपने नाना को करके जैसे रुखसत होते हैं, कलेजा मुंह को आता है। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई। 14वीं सदी का मुजद्दिद आशिक रसूल यूं कहता है, या काफिलती जीदी अजलक रहमे बर हसरत हसरत तश्न लबक, मुरा जियारा लर्जे दरक दरक, तैबा से अभी ना सुना जाना। ये 14वीं सदी का गुलाम कह रहा है, जो नवासा होगा जब उसने आखिरी सलाम किया होगा, आखिरी सलाम कब्र रसूल को देख के क्यों,
गुंबद को देख के सलाम करने वाले के कदम बोझल हो जाते हैं। जिसने नाना की कब्र देखकर सलाम किया होगा, और मेरा तो ये यकीन कहता है कब्र ही नहीं, साहिब कब्र का जलवा भी नजर आ रहा होगा। मौला हुसैन अपने आस्तीन से दामन को, अपने आस्तीन से आंसुओं को खुश्क करते हुए सरकार की बारगाह से पिछले पैर उल्टे पैर अपने घर की तरफ आते हैं। कितना बड़ा सदमा है, कोई सदमा और भी ना हो, शहर रसूल छूटने का सदमा कोई कम न था। कितना बड़ा सदमा है, इस सदमे को कौन बयान करे। कलम कांपता है, जबान लरसती है, कलेजा मुंह को आता है। अभी से इम्तिहान शुरू हो गया है सैयदा के लाल का, करबला के मुसाफिर का इम्तिहान अभी से शुरू हो गया है। नाना का दर्द छोड़कर पलट कर देखते हैं। दिल कहता है रुकिए, जिम्मेदारी कहती है चलिए, शौक कहता है रुकिए, ज़मीर कहता है चलिए, मोहब्बतें कहती है रुकिए, दीन के तकाजे कहते हैं चलिए, और जल्दी चलिए, ताखीर न कीजिए। आखिरकार अपनी पसंद और नाना की पसंद में जब तकाबुल होता है, हुसैन अपनी पसंद को कुचल कर नाना की पसंद का ख्याल करते हुए फिर रुख मोड़कर हमेशा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। घर में कदम रखा, क़यामत सुगरा कायम है, क़यामत सुगरा घर में कायम है। अजीब हाल है, बीबियां हैरतो यास की तस्वीर बनी हुई है। सबको पता है अज़्म तो मक्के का है लेकिन जाना करबला है, क्योंकि सैयदा फातिमा ने बार बार कहा करबला में शहीद होगा मेरा बेटा। मौला अली ने कहा मेरा बेटा करबला में शहीद होगा। रसूलुल्लाह ने तो वक्त विलादत कहा मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, मिट्टी भी दी, सब कुछ। सबको पता है करबला जा रहे, शहीद होने जा रहे हैं, जान लुटाने जा रहे हैं। कोई दामन नहीं चुराता, कोई दुआ नहीं करता जान बचने की, इसलिए कि दीन से ज्यादा अपनी जान से भी प्यार नहीं है। घर का हाल ये है, बच्चा बच्चा रो रहा है, सामान बन चुके हैं, सवारियों पर सामान लद चुके हैं, और घर का हाल ये है कि सब घर से निकल रहे हैं। एक बीमार को छोड़कर जाना है, जो मौला हुसैन की बड़ी बेटी है, जिसका नाम फातिमा सुगरा है। आखिर उस बच्ची का क्या कसूर था कि सबको ले गए, हत्ता के महीने 2 महीने के बच्चे को भी साथ लेकर जाया जा रहा है। सुगरा को क्यों छोड़ा जा रहा है? सुगरा का कोई कसूर न था, बल्कि उज़्र ये था कि उस दिन सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा इतने बुखार में तप रही थी कि उठकर खड़े होने की गुंजाइश न थी। लेकिन सुगरा जाने वालों को कहती थी आप लोग बदले बदले क्यों नजर आते हैं, आप लोग आज क्यों तब्दील नजर आते हैं, आप लोग आज कुछ बेमुरव्वती सा इजहार क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ। हम मक्का जा रहे हैं, मुझे ले चलो। नहीं तुम बीमार हो, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। नहीं मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। माँ को लिपटती है, कहती है मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। अगर तुम लोगों को यूं है कि खाने का कोई मसला होगा तो मैं खाना नहीं मांगूंगी, मैं बड़े काम करूंगी। असगर मुझसे बहुत मानूस है, मैं उसको खिलाऊंगी, मुझे पता है। तुम मक्के का कह के करबला जा रहे हो, लड़ाई के दरमियान जब असगर प्यास से रोएगा तो मैं उसको गोद में लेकर लोरियां दूंगी, खिलाऊंगी, मुझे ले चलो, मैं चलना चाहती हूँ। माँ तसल्ली देती है, भाई तसल्ली, बहन तुम अच्छी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अली अकबर कहते बहन मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊंगा, इंतजार करना। नहीं तुम नहीं आओगे। नाना से सुनने वालों ने सुन करके मुझे बताया है कि जब हुसैन जाएगा तो फिर पलट कर नहीं आएगा। अली अकबर ने कहा सुगरा हम आज करबला नहीं, हम मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक होगी? पूछो बाबा से।
मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसे में ये मंजर इमाम हुसैन देखते हैं, दिल बैठा जाता है। करबला में जो होगा वो होगा, आज क्या हो रहा है घर में। कहते हैं कि बाहर के इम्तिहानात से निपटना बड़ा आसान होता है, घर के इम्तिहान से निपटना बड़ा मुश्किल होता है। हाय, दीन की असमतों को पामाल करने वाले जरा महसूस तो करें कि कितनी कुर्बानियां दी जा रही है। मौला हुसैन ये देखकर दिल बैठा जाता है। जैसे सबकी नजर इमाम पर पड़ी, इमाम ये सब मंजर देख रहे थे। बेटी लिपट गई बाबा से, बाबा मैंने जो मांगा आपने दिया, आज मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तुम बीमार हो। नहीं बाबा, मैं अच्छी हो गई हूं, देखो मैं खड़े हो सकती हूं, मैं चल सकती हूं, चल के बताऊं। सोगरा अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद खड़े होकर जैसे चलने की कोशिश करती है, जमीन पे गिर जाती है। बीमारी जीत जाती है, सुगरा हार जाती है, बेहोश हो गई सुगरा। सकीना ने कहा, बाबा मेरी बहन को होश में लाओ, आखिरी सलाम तो कर लूं, अपनी बहन से गुफ्तगू तो कर लूं। ऐसे में पानी के छींटे दिए गए, सुगरा होश में आई। मौला हुसैन ने कहा, बेटी तेरे साथ वादा है, तुम अच्छी हो जाओ, खत लिखना, मैं अली अकबर तुम्हारे भैया को भेजकर तुम्हें बुला लूंगा, फिर तुम हमारे साथ रहना, उस वक्त तक इंतजार करो, अपनी अम्मी से मिलो। अली असगर को करीब किया गया, पीछे हट गई, कहने लगी मेरा फूल जैसा भाई मेरे बुखार की गर्मी से मुरझा ना जाए। आखिरी मर्तबा भाई को देखा, छोटे से नन्हे से भाई। दीन के लिए कुर्बानी देने वालों की कुर्बानियां भी क्या है। आज तो लोग दीन बेचकर दौलतमंद बनते हैं, वहां जान बेचकर दीन बचाया जा रहा है। क्या कुर्बानी है। आखिरकार मौला हुसैन अपनी बेटी को कहते हैं, तुम उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के घर रहो, जैसे अच्छी होना खत लिखना। अच्छा बम चलते हैं। उसके बाद जैसे तैसे बेटी को मनाया, अपनी बेटी को उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के सुपुर्द किया। ये उम्मुल मोमिनीन भी है और रिश्ते में अब चूंकि इमाम हुसैन की नानी होने की हैसियत से ये हजरत सुगरा की भी नानी है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को सौंपा और उसके बाद सवारियों पर सवार हो गए और फज्र का वक्त तुलू होने से पहले 4 शाबान को अहले बैत कसर सा काफिला सूबे मक्का रवाना हो गया। धूल उड़ती गई। मस्जिद नबवी के मीनार ऐसा लगता है कि उचक उचक कर करबला के मुसाफिर को आखिरी मर्तबा देखना चाहते हैं। करबला वाले पलट पलट कर नाना के रोसे को देख रहे हैं और आंखों से आंसू जारी है। आखिरकार धूल उड़ती गई और ये मुख्तसर सा काफिला रात के आखिरी पहर में उस गर्द के अंदर छुप गया और छुपने के बाद हमेशा के लिए रूपोश हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।